Now everybody has joined, I think, right? So let's wait for 1 more minute so that other people can join, then we can start. Okay, so in last class we had discussed about if statement, if condition, and switch case, right? And this was the summary that we had last studied. Okay, so now today we have to start with loop. So loop is also called iteration. Yeah, so whenever something is repeating, we call that it is a loop. So loops are used in programming to repeat a specific block until some end condition is met. Okay, so if I ask you that you have to, जैसे एक डॉलर साइन का आपके पास में एक क्वेश्चन था लैब असाइनमेंट में, तो आई विल आस्क यू कि डॉलर साइन आप प्रिंट करिए, बट आपको कितनी बार ये प्रिंट करना है फॉर आपने तो वो डायरेक्टली यूज किया था एस्केप सीक्वेंसेस, देन यू हैड प्रिंटेड. But if I ask you to print dollar sign 100 times, one by one by 100 times, so you will be needing the first position. Yes, this is now if I ask you to print it 100 times, आपके पास में एक ऑप्शन होगी क्या. अब ये पहले इसमें सोचेंगे कि यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और जब 100 हो जाएगा, 100th आपके पास में डॉलर साइन आ जाएगा, दिस इज 100th, एंड नाउ फॉर 101 डॉलर साइन आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू प्रिंट इट ओनली 100. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. आपको पहली पोजीशन चाहिए होगी, you will be tracking the number. Yes, first position and then the last position where you have to stop. So last position will be called condition. Yes, so one for some particular position. Let me first make the people in. So this is the final position, and this will stop at some particular condition. So let's see first kya hai. uh, okay, I think this dev c++ is not visible to you. 1 minute. Let me share whole screen, then we can move forward. Okay, I was talking about this dollar sign कि आपको अगर ये बहुत बार प्रिंट करना है तो आपके पास में पहले एक पोजीशन होगी, देन लास्ट पोजीशन होगा, बिकॉज दिस इज द वन. और आप सेकंड पोजीशन कैसे करेंगे, वन ऐड करके. थर्ड पोजीशन का कैसे पता चलेगा, उस सेकंड पोजीशन में वन ऐड करके. ठीक है, एंड देन सो ऑन. ये 100th पोजीशन पर आ गया है, 100 आपने डॉलर साइन प्रिंट कर दिए हैं. अब आपको पता है कि मुझे 100 डॉलर साइन प्रिंट करने, मींस इट इज अ रेपिटेशन, सेम थिंग, यू आर डूइंग सेम थिंग एट ईच स्टेप. यस, इट इज रेपिटेशन. और आपको कहाँ तक ये करना है, 100 जब डॉलर साइन आ जाए. हाँ, इसके बाद 101 पोजीशन पर आपको रुक जाना है. सो दैट विल बी द टर्मिनेटिंग कंडीशन. वो हम एक बेस लेके चलेंगे कि ये आपके पास में अब टर्मिनेट कर जाएगा, अब इसके आगे हमने नहीं जाना है, रिपीट नहीं करना है. ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास में रेपिटेशन आएगी, देयर वी विल सी दैट वी हैव टू यूज द लूप्स. फाइन. लूप्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू repeat a specific block, to repeat a specific block where repetition is there we can use the loop until some end condition is met. सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट कहाँ तक हमें रिपीट करना है, वहां हम उसके लिए एक वी विल गिव सम एंड कंडीशन. ठीक है, चलो देखेंगे हम कैसे कैसे हम एंड कंडीशन देंगे और स्टार्टिंग कंडीशन देंगे. ओके, तो यहाँ पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 types of loops. First is for loop, then we have while loop,
then third is do while loop, right? And work of all these loops is same. Every loop will work same. Their work is to repeat something, repeat some specific block. Block मतलब set of conditions will be there, ठीक है? For loop भी repetition करता है, while loop भी repetition करता है, do while loop भी repetition करता है. So there is a small difference between while and do while that will be also be covering in this lecture. Fine. So next is first we have for loop. First we have to study for loop. तो इसमें हमारे पास में क्या है? Syntax of for loop. कैसे लिखते हैं for loop को? I will be writing for, that is the keyword. Keywords हमने पढ़े हैं ना पहले lectures में. For is a keyword. साथ के साथ आप एक round bracket शुरू करेंगे. Yes, साथ के साथ आप एक round bracket शुरू करेंगे. And first आप क्या लिखेंगे? Initialization statement. Fine. क्या है ये? Initialization statement. आपका जो रेपिटेशन है, आपका ये जो लूप है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये एक रेपिटेशन है, बट ये आपका कहाँ, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन. एक तो आपके पास में चीज ये हो गई कि रिपीट करना है मुझे डॉलर साइन आपका कंटेंट हो गया, ठीक है, इस चीज को रिपीट करना है. बट कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से शुरू करना है. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सो दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन. फाइन. इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वो हम देखेंगे हम कि हमें सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. फाइन. देन सेमीकोलन आएगा, ठीक है. आफ्टर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वी हैव टू पुट अ सेमीकोलन जो इधर सेंटर में है. देन वी हैव टू पुट सम टेस्ट एक्सप्रेशन. टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब एक ये कंडीशन है, ठीक है. एंड देन आई एम अगेन राइटिंग अ सेमीकोलन. देन वी हैव टू अपडेट द स्टेटमेंट. अपडेशन का मतलब क्या कि एक स्टेप के बाद आप दूसरे स्टेप पे जाके फिर से डॉलर साइन कुछ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है. अब सेकंड हो गया, फिर से आप एक प्लस प्लस कुछ करेंगे या एक पोजीशन को +1 करेंगे या 2 करेंगे, कुछ भी अपडेट करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा? अगेन दैट स्टेप विल बी रिपीटेड. Fine. We will see all these things with examples also if you are not getting it right now. तो यहाँ इसके बाद में ये सब चीज लिखने के बाद में हमने सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है. जैसे इफ के बाद में नहीं लगाया था, तो इसको मैंने राउंड ब्रैकेट को बंद किया एंड फिर साथ में यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया. ये ब्रेसेस के अंदर जो हम लिखते हैं ना, इस चीज को हम ब्लॉक बोलते हैं. तो आई एम क्रिएटिंग दिस ब्लॉक और उसके अंदर जो भी चीज को रिपीट करना है, वट एवर आई हैव टू रिपीट, जिसके ऊपर ये लूप लगेगा वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है. यस, so this is the syntax of the loop. Fine. For loop. Fine. तो इसमें एक एग्जांपल पहले हम ये देख लेते हैं. ये देखिए कि यहाँ पर मेरे पास में for I equals to 0. This is the initialization statement. Fine. Then I less than equal to 5. This is the condition test expression. And then I have written I plus plus. और साथ में यहाँ पर मैंने लिख दिया print %d I. ठीक है. तो पहले first I'll be talking about. I hope dev C++ is visible to you, right? 1 minute. Let me. हाँ. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं for loop का. मेन के अंदर क्या करेंगे? You can take int main. ठीक है. तो इसके अंदर मैं आपको पहले for loop लिख के दिखाती हूँ. तो for हमने लिखा है, साथ में हमने राउंड ब्रैकेट डाल दिया. फाइन. पहले हमारे पास में क्या होगा? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है. ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके बाद में आपको एक सेमीकोलन लगाना है, ठीक है. सेकंड जो सेंटर में आएगा वो क्या होगा? टेस्ट एक्सप्रेशन, या इसको आप कुछ कंडीशन बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज सेम. So this is condition, and then 1 minute, and then again you have to put one semicolon, and then you have to write update statement. Okay, so this is update statement. इसके बाद में आप इस ब्लॉक के अंदर 7th and 8th लाइन के अंदर whatever you are writing, ठीक है, चाहे आप print f यहाँ लिख df $, ठीक है, बाद एक मैं बैकस्लैश n डाल देती हूँ.
तो ये सब आप जो भी इधर लिखेंगे तो दैट विल बी रिपीटेड। फाइन, आप यहाँ पर इसके अंदर फॉर लूप में जो भी लिखेंगे दैट विल बी रिपीटेड। ठीक है, अब ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये अपडेट स्टेटमेंट क्या है, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई हैव हियर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अब आप इसमें जाओ, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट मतलब आपका जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये डॉलर साइन मैंने अगर यहाँ लिखा है तो ये दिस इज द फर्स्ट डॉलर साइन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम, ये जैसे आप बोलते हो ना, यहाँ मैंने 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने, ये मेरा फर्स्ट डॉलर साइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड पे आया, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सो ऑन अप टू 10। ठीक है, ये मैंने 10 डॉलर साइन प्रिंट किए हैं। फाइन, तो फर्स्ट जो डॉलर साइन है, ये जो फर्स्ट पोजीशन आपकी इसकी रहेगी, फॉर दैट यू विल बी राइटिंग कि ये फर्स्ट 1 से जाके 10 तक जाना चाहिए। ठीक है, सो आई राइट हियर, अब 1 डायरेक्टली तो मैं यहाँ लिख नहीं सकती, आई हैव टू टेक सम डेटा फॉर दैट। इनसाइड सी प्रोग्रामिंग यू कैन नॉट डायरेक्टली टेक 1, वो कहेगा ये करेक्टर है, फ्लोट में है या इंटीजर है, सो वी हैव टू टेक 1 integer variable, we will be putting that 1 in some variable. Fine, so I am taking int I as a variable and I am assigning it 1. Fine, इसका मतलब क्या है कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। फाइन, ये आपका 1 है, इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। अब ये आपका जो लूप है ये कहाँ तक जाएगा, वो आपका सेकंड ये जो पार्ट है कंडीशन, दैट विल टेल। फाइन, ये आपका लूप जो है वो कहाँ तक जाएगा और उसके बाद में स्टॉप कर जाएगा। ये कंडीशन जहां जहां ट्रू होती रहेगी, योर लूप विल बी फॉलोड। लूप मतलब क्या, ये प्रिंटफ जो है आपका, ये आपका चलता रहेगा। ये आपका डॉलर साइन प्रिंट होता रहेगा। आपने अगर ये 10 बार प्रिंट करना है, ये आपने 10, आपका आउटपुट ये आना चाहिए जो मैं नीचे मैंने लिखा है, इफ दिस शुड बी द आउटपुट, so how many times you have to repeat, it will go for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइन, तो यहाँ मैं ये जो कंडीशन है ये आई पे डिपेंडेंट होगी, क्यों, क्योंकि मैंने ये 1 से शुरू किया है और ये 10 तक जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। मुझे दोबारा यहाँ पर आई लिखने की इंट आई लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इंट आई बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इंट आई डिक्लेयर कर देती हूँ। फाइन, और फिर आपने यहाँ आई इक्वल्स टू 1 ले लिया, आई इक्वल्स टू 1 ले लिया और फिर आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो लूप में आपके पास में जो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ एक चीज रहेगी, दैट मीन्स इट इज द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। फाइन, सेकंड जो आपका इस सेमी कॉलन के बाद में पार्ट रहेगा वो क्या है, दैट इज द कंडीशन, यहाँ ये चलना चाहिए। अब मैं ये इसके बाद में बताऊंगी कि मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है। ठीक है, थर्ड जो आती है आपकी वो है अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट का मतलब क्या, इसका मतलब है कि आप जैसे 1 से शुरू हो गए, 1 पोजीशन पे तो आपने ये लूप चला ली, बट नेक्स्ट पोजीशन पे भी आपको अब जाना है। वो कैसे जाओगे, तो वो कैसे जाओगे, वो आई को आई इक्वल्स टू आई 1 मिनट, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करके जाओगे। ठीक है, ताकि हर पोजीशन पे अगर पहले मेरे पास में ये 1 है, नेक्स्ट टाइम ये 2 हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये 3 हो जाए, नेक्स्ट टाइम फोर्थ पोजीशन पर ये प्रिंट हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिफ्थ पोजीशन पर ये प्रिंट हो जाए। तो आई विल राइट हियर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और यू कैन राइट हियर आई प्लस प्लस, somewhere you will find that it is written I plus plus or plus plus I। ठीक है, तो that is same। उसके बाद में इनसाइड द ब्रैकेट यू आर पुटिंग प्रिंट एफ डॉलर साइन। ठीक है, तो आप ये देखो, आई एम तो आप ये देखो कि ये लूप कैसे चलेगा। नाउ वी हैव टू सी, पहले हमने ये देख लिया कि हमने कैसे कैसे लिखना है। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रल पार्ट इज द कंडीशन, और लास्ट में हमने अपडेट स्टेटमेंट लिखना है। इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रैकेट, where whatever you want to repeat that will be that you will keep in the loop।
ठीक है, यस। नाउ वी हैव टू सी हाउ दिस लूप विल वर्क, ये काम कैसे करेगा, ठीक है। ओके, अब आप इसको पहले देखिए, आई एम राइटिंग दिस एज, ये मैं लिख रही हूँ 1, ठीक है, इसको मैं सेकंड लिख रही हूँ, इसको लिखा मैंने, इसको आप प्लीज जरा भी ध्यान देना, बिकॉज आई डोंट हैव पेन एंड इफ आई यूज तो समटाइम्स मेनी टाइम्स इट डजंट वर्क। तो ये मैंने 3 लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 3 एंड दिस 3 इज फॉर दिस होल पोर्शन printf वाला, ठीक है, और यहाँ मैंने 4 लिखा है, ठीक है। तो जहां मैंने अब ये 1 2 3 4 लिखा है, ये चीज फॉर लूप ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपके लिए क्या होगा, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 में मेरे पास में क्या है, i is equal to 1 में what I have, so first i is equal to 1 will work, so this I will now, second step क्या है मेरा, second step क्या है, I will be now compared with 10, ठीक है। देखो मैं नीचे इसका ना वो लिख रही हूँ सारा आंसर, i is equal to 1 के लिए ये सारा अब चेक होगा, ठीक है, और i is equal to 1 यहाँ से स्टार्ट होना है, सिर्फ ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज यूज्ड वंस ओनली, so this is your starting point, I is equal to 1। अब सेकंड स्टेप आपका क्या चेक होगा, I less than equal to 10, so now when you say 1 less than equal to 10, ये क्या है, 2 है, ठीक है। so now if it is true then it will go to third part, what is third part, क्या उसमें लिखा है, printf डॉलर साइन, तो आपका ये एक डॉलर साइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये नहीं आएगा जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे आएगा डॉलर साइन जो आपने प्रिंट किया है, प्रिंट एफ में लिखा है, दिस डॉलर साइन विल गेट प्रिंटेड, फाइन। थर्ड स्टेप आपका हो गया, अब क्या होगा, नाउ इट हैज टू गो फॉर फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, आई प्लस प्लस, जो आई की पहले वैल्यू थी 1, आई प्लस प्लस का मतलब क्या, नाउ आई बिकम्स plus plus 1 plus plus means it becomes 2 now, fine, so now this I will become 2 now, so again now this process, ये जो process है यहाँ पर, ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, now it will be repeated again, ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है ये आपके समझने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको पेपर पे ऐसे 1 2 3 4 नहीं लिखना, तो क्या है, नाउ अब फोर्थ ये जो स्टेप है, ये i प्लस प्लस के बाद में आपका जो i की वैल्यू है, i वेरिएबल की वैल्यू है, क्या हो गई, अब 2 हो गई है, नाउ अगेन दिस सिनेरियो विल, होल सिनेरियो विल वर्क, बट नाउ यू विल सपोज दैट हियर, यहाँ पर आप ये सपोज करेंगे कि यहाँ i इक्वल्स टू 2 है, फाइन, ठीक है, now this will work for I is equal to 2, now you will again see second step क्या है आपका, I less than equal to 10, तो 2 है, I की वैल्यू 2 है, so 2 less than equal to 10, is it true, yes it is true, तो 2 है, तो क्या करो, थर्ड स्टेप जाओ, या थर्ड स्टेप पे क्या है, प्रिंट डॉलर साइन, तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डॉलर साइन प्रिंट कर देंगे, ठीक है, यस, इसके साथ में ही आएगा ये एक डॉलर साइन, आई विल टेल यू अगेन, फाइन, ऐसे ही क्या होगा, आई प्लस प्लस, अब फोर्थ, अब थर्ड स्टेप तो हो गया आपका ये प्रिंट एफ, फोर्थ स्टेप चलेगा, फोर्थ स्टेप में क्या है, आई प्लस प्लस, उसके लिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 था पहले, तो आई प्लस प्लस मतलब अब आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो अब ये फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, क्यों, क्योंकि अब ये i इज इक्वल टू 3 के लिए काम करेगा, i इज इक्वल टू 4 के लिए काम करेगा, हर स्टेप पे ये क्या करेगा, एक एक डॉलर साइन प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, हर स्टेप पे एक एक डॉलर साइन ये क्या करेगा, प्रिंट करता जाएगा, नाउ लेट अस सपोज i इक्वल्स टू 10 हो गया, तो क्या होगा, i प्लस प्लस होते जा रहा है तो डॉलर साइन प्रिंट होते जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, i इक्वल्स टू 10 हो गया, तो 10 इक्वल्स 10 लेस देन इक्वल टू 10,
इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, क्योंकि इक्वल है तो भी एक डॉलर साइन प्रिंट हो जाएगा उसकी जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, देखो 1 स्टेप हो गया, 2 हो गया, आपने कंपेयर कर लिया 10 को, थर्ड पे डॉलर साइन प्रिंट हो गया। अब ये नहीं है कि यहीं पर छोड़ दोगे, फोर्थ स्टेप भी तो एग्जीक्यूट होगा, टोटल 4 स्टेप इसमें एग्जीक्यूट होंगे। तो जब 4 में क्या होगा, i प्लस प्लस होगा। अब i इज इक्वल टू 10 था, तो आपके पास i 10 प्लस 1 कितना, 11 हो गया। सो नाउ दिस 11 विल बी कंपेयर्ड विद 10, i लेस देन इक्वल टू 10, नो इट इज फॉल्स, ये तो फॉल्स है। तो अब ये क्या है, अब ये डॉलर साइन प्रिंट नहीं होगा, ना ही ये i इज इक्वल टू 11 के लिए चलेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, आगे ये थर्ड स्टेप नहीं जाएगा, और और ये इस ब्रैकेट से, ये वाली ब्रैकेट जो 9th लाइन पे है, इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये लूप प्रिंट होगा ना, आपका जो जो ये डॉलर साइन प्रिंट होगा, वो कैसे प्रिंट होगा, मैं सबसे फर्स्ट लाइन में, मैं ऊपर टॉप पे लिख रही हूँ, आपका ये डॉलर साइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे प्रिंट होगा, क्योंकि फर्स्ट जो आई आपका आई विल रिपीट दिस, सी आई इज इक्वल टू 1 के लिए एक डॉलर साइन प्रिंट हुआ, आई इज इक्वल टू 2 के लिए एक डॉलर साइन प्रिंट हुआ, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक स्टेप में एक एक डॉलर साइन प्रिंट होगा, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड रेपिटेशन में सेकंड वाला, थर्ड रेपिटेशन में थर्ड वाला, एंड सो ऑन अब तक होगा जब तक ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अब यहाँ तो नीचे तो मैंने आपको जो ये दिखाया ना, वो तो अलग अलग लाइंस पे दिखाया है, बट एक्चुअली में क्योंकि आपने बैकस्लैश एन नहीं दिया है, तो ये इकट्ठा ही प्रिंट होगा। अगर आप इस प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन दे देते, तो ये एक एक करके अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो जाता। ठीक है, नाउ यू आस्क क्वेश्चंस के आपको थोड़ा इसका बेस क्लियर हुआ कि ये हम क्यों करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, I will take. Please raise your hand. Do not, हाँ, Sonali, yes. Yes, Sonali. Why does plus plus I or I plus plus does not make a difference? Here it will not make a difference because its work is only to add 1 in any variable. Okay? Okay. Yes, ma'am. Okay. Any other? Any other doubt? Please ask me. एक बार रिपीट करने के लिए बोल दो, चाहे एक ही बार में, ऐसे कैसे समझ में आ गया। If you don't have any doubt, I can move further. Without any repetition. Otherwise, I will repeat once again. Not everything, but I'll provide just a gist of it. Any doubt? You can raise your hand. Okay, okay. It means you are getting everything. So I repeat. Anyways, I will repeat. Okay. So जो loops होते हैं, they are for repetition. ठीक है. अच्छा, ये डॉलर साइन में आपके पास में आपने 10 टाइम्स अगर मैं आपको प्रिंट करने के लिए कहती हूँ, प्रिंट एफ में 10 टाइम्स प्रिंट कर दोगे, है ना। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ 1000 टाइम्स प्रिंट करो, तो हर बार आप प्रिंट एफ नहीं लिखने वाले, एंड हर बार 1000 टाइम्स नहीं लिखने वाले। उसके लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास में लूप होता है। वी यूज लूप्स व्हेनेवर वी हैव टू रिपीट समथिंग। लेकिन अगर आप रेपिटेशन के बारे में बात करते हैं, देन यू हैव सम इनिशियल पॉइंट वेयर from where that repetition has to get started, and a final point where that repetition has to stop. ठीक है, आप अपने पेपर के टाइम पे 3 बार रिवीजन किया आपने, ठीक है, एक बार रिवीजन किया, सो यू हैव सम काउंट, फाइन। For that count, you have to give that initial value and you have to give the final value. ठीक है, क्योंकि आपको हर स्टेप में नेक्स्ट भी तो करना पड़ेगा। अब आप जब आप अपनी रिवीजन पेपर के लिए कुछ करते हैं, सेकंड टाइम आपने कर लिया, एक चीज को पढ़ लिया, थर्ड टाइम आप सिर्फ उसको जीरो से काउंट थोड़ी करोगे, बैक पोजीशन से उसको काउंट करोगे। सेकंड तो टाइम कर लिया, अब मुझे थर्ड टाइम करना है ये,
ठीक है. So that track, that updation will be maintained by this fourth. यहाँ जो मैंने 4 यहाँ लिखा है, यहाँ पर हम अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं. ठीक है. अपडेट स्टेटमेंट +2 कुछ भी हो सकती है यहाँ. ठीक है. और साथ में इस चीज को रिपीट करना है वो हम यहाँ पर रखेंगे. ठीक है. आप इस ब्लॉक में रखेंगे, इस फॉर के ब्लॉक में. जो भी इस फॉर के ब्लॉक में रखेंगे, that will get repeated again and again. How long it will repeat it? That will be repeated until this condition is false. जब तक ये ट्रू है तब तक रेपिटेशन होता रहेगा. आपको हिंट के लिए क्या सीखना है? आप इनिशियलाइजेशन को फर्स्ट स्टेप मान लो, कंडीशन को सेकंड स्टेप मान लो, इसको थर्ड स्टेप मान लो जो आपका ये बॉडी ऑफ लूप है, और फिर इसको जो अपडेशन स्टेटमेंट है उसको फोर्थ. ऐसे चलेगा लूप आपका. पहले इनिशियलाइजेशन होगी. ठीक है. तो ये इनिशियलाइजेशन जो हो गई, वेरिएबल की कुछ वैल्यू असाइन कर दी आपने, उस वेरिएबल की वैल्यू को इस कंडीशन के साथ में कंपेयर किया जाएगा. अगर ये ट्रू हो गया तो ये बॉडी ऑफ लूप चल जाएगी. लेकिन ये लूप एक बार ये बॉडी ऑफ लूप चलने के बाद खत्म नहीं हुआ आपका काम. आपको क्या करना है? दोबारा यहाँ ऊपर जाना है. कहाँ पर? यहाँ पर फोर्थ स्टेप पर, अपडेशन स्टेटमेंट वाले एरिया में. ठीक है. आपका यहाँ अपडेशन हो जाएगी आपके वेरिएबल की. फाइन. अपडेट हो गया वेरिएबल, देन जैसे i is equal to 2 हो गया, so that this loop will now work for i is equal to 2. next step, this loop will work for i is equal to 3. तब तक ये सब होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. जब फॉल्स होगी तो ये चेक किया जाएगा, तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन फॉल्स जब हो गया तो ये नहीं चलेगा. ठीक है. बॉडी ऑफ लूप विल नॉट वर्क. फाइन. आई होप इट इज क्लियर नाउ. फाइन. हमने अभी क्या देखा कि फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं और बीच में कंडीशन इनिशियलाइजेशन होती है पहले हमारे पास में कि कहाँ से लूप स्टार्ट करना है, देन वी हैव कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो हम देखेंगे कैसा. बस अपडेशन होती है यहाँ. ठीक है. ये देखिए. तो उसके बाद में आपके पास में स्टेटमेंट रहती हैं. तो अगर मेरे पास में एक प्रोग्राम है, ये मेरे पास ये 1 2 सब मैं हटा रही हूँ. ठीक है. ये मेरे पास में प्रोग्राम है. आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि इस फॉर लूप के बाद में, ब्रैकेट के बाद में सेमीकोलन नहीं डालना है. डोंट हैव टू पुट दिस सेमीकोलन आफ्टर द फॉर लूप. देन दिस फॉर लूप विल नॉट वर्क बिकॉज दिस सेमीकोलन इज फॉर टर्मिनेशन. इसको आपको इसके अंदर डालना है. अच्छा, कई बार क्या करते हो आप लोग, यहाँ कॉमा डाल देते हो. तो ये कॉमा से नहीं चलेगा. इट हेयर everything you have to terminate. First step, then second step, so that is different step na. So you have to write the semicolon here. These statements should be differentiated and terminated at each point whenever it is required. So you need to put semicolon. और इसके बाद में लोगों को आदत है कि चलो इसको स्पेस दे देते हैं. आपको जरूरी नहीं है, अदरवाइज एरर्स कैन अकर. ठीक है. अगेन जैसे हमने स्टेटमेंट में किया था, अगर आपके इफ स्टेटमेंट के बाद एक ही लाइन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इफ, देन यू नीड नॉट पुट एनी ब्रैकेट. ऐसे ही अगर आपके एक इस फॉर लूप के बाद में एक ही स्टेटमेंट है जो इस फॉर लूप के ऊपर डिपेंडेंट है, देन देयर इज नो नीड टू पुट, इधर यू कैन पुट द ब्रेसेस और नॉट, इट इज योर चॉइस. ठीक है. बट ये डाल लेना चाहिए हमें. ठीक है. इट इज अ गुड हैबिट टू पुट दीज नो स्टेटमेंट्स, दिस टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉक. इसको हम ब्लॉक बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आपके पास में ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस लूप, so you can put more statements inside this loop. ठीक है. इसमें हैश इंक्लूड लगा के सब इसको चला के देखिएगा, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डू. ठीक है. इंट मेन लगा देती हूँ यहाँ पे. रिटर्न 0 आप अपने आप इसमें डाल लेना. loop.c. okay,
So now I compile it. If it will take time, then we will, I will not wait for it. Otherwise, yes. So on the screen, it just popped up. See now. ठीक है, ये थोड़ा स्लो अभी चला, इसीलिए आपको 1 by 1 ऐसे डॉलर साइन प्रिंट हुआ दिखा, अदरवाइज एक ही बार में प्रिंट हो जाता है. ठीक है, 15.41 सेकेंड्स, बट ये इतना लेना नहीं चाहिए इसको. ठीक है, तो आप इसको चेक करके देख लेना. अगर आप इस यहाँ पर बैकस्लैश एन डालते हैं तो फिर वो एक लाइन में एक डॉलर साइन आ जाएगा, देन इट विल गो इन द नेक्स्ट लाइन. ठीक है, so with this you can try these kind of statements. ठीक है, this loop. So let's go to examples for this loop. ठीक है, so in this example, in this particular example, I have for I equals to 0. अब I ये क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है मेरे पास में, और I क्या है वो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे. ये एक इंटीजर वेरिएबल है. ठीक है, मैंने I को ऊपर पहले डिक्लेयर कर दिया, देन आई एम यूजिंग फॉर, एंड मेनी टाइम्स यू कैन डिक्लेयर इट इनसाइड आल्सो. इंट I is equal to 0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम. देन I have to put semicolon after this initialization statement. Then I have to put one condition. I less than equal to 5 है इस केस में, इस प्रोग्राम में, और I प्लस प्लस आपकी अपडेशन स्टेटमेंट है कि ये अपडेट हो रहा है. ठीक है, ओके. तो इन दिस बॉडी ऑफ लूप आई हैव printf %di. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए. मैं किसको, I को ही प्रिंट कर रही हूँ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने %d लगाया और साथ में I को ही प्रिंट कर दिया, आपके वेरिएबल को ही प्रिंट कर दिया. ये चेक करने के लिए कि ये I क्या वैल्यू दे रहा है, तो आपके पास में क्या आएगा बताइए. अगर आप डायरेक्टली I को प्रिंट करते हैं तो ये नंबर्स ही आएंगे ये प्रिंट होके. यस, अगर डॉलर साइन था तो डॉलर साइन आया ना, वो तो कुछ भी प्रिंट करवा लो. अगर आप हर स्टेप पे ये नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं तो I is equal to 1, I is equal to 2, ये 3, 4, 5 ये सब आपके पास में आ जाएगा 1 by 1. See this on the screen. ठीक है, अगर आपको इसमें स्पेस देना है, then you can put a \t here. Yes, if you want to put it in the next line, you can put \n also. Fine. This is the second example that we have done for loop. Okay. So same loop I can write like this also. See this. इस example में मैंने क्या किया, उल्टा लूप चलाया है. कैसे, I equal to 10. लूप चल रहा है बट आपकी इनिशियलाइजेशन जो है देखो 10 से हो रही है. I is assigned 10 here, right? और कंडीशन में क्या है, I greater than equal to 1. I greater than equal to 1. Yes, then I have I minus minus. Then okay, can you tell me what is at what time we have to leave this class? चलो, तो यहाँ पर अगर मेरे पास में मैं इनिशियलाइजेशन आपकी 1 0 10 से कर रही हूँ, then I have to reverse the condition. ठीक है, I will be writing greater than, I greater than equal to 0 से, चलो मैं इसको कर देती हूँ. तो ये अगर मुझे 10 से 0 तक यहाँ मुझे नंबर्स प्रिंट कराने हैं, then I will be using I minus minus, because at each step I want to decrease those numbers 10, 9, 8, 7. Yes, साथ में मैंने हर स्टेप पे इसको प्रिंट कर दिया. What will be the answer? कैसे, पहले I is equal to 10 होगा. क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर printf कर रहे हैं. Yes, 10 को printf I कर रहे हैं. Then I is equal to 9. क्यों, क्योंकि जो भी I की वैल्यू थी यहाँ पर I is equal to 10, वो आप माइनस माइनस कर रहे हैं.
ठीक है, I greater than equal to 0 है, 10 greater than equal to 0, but and then this will be get printed, but in the next step you are, क्या अपडेट स्टेटमेंट हो रहा है, I माइनस माइनस, I माइनस माइनस मतलब -1 कर रहे हैं, तो 9 will be there, right? आपके पास में 9 आ जाएगा. So this loop will again work for 9, then 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and for 0 also. I don't know why it is not getting printed, but it should print. ठीक है. What time we have to leave the class? Just inform me. ठीक है, otherwise, yes, Sonali. Ma'am, बोलो. ma'am, it ends at 9:40. ठीक है. I don't know why it is not getting printed, but it will work. ठीक है, इसको print करके देखिएगा आप, then it will work. So you have to try these examples on your own. ये नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है तो ये काम चल गया, नहीं, अपने आप से इसको पहले करके देखना है, then you believe me, fine? Okay. So next program we have is to print all the even numbers. So I'll first erase this. I'll hide this first. Print all the even numbers between 1 to 10. Okay. So आपके you have to print all the even numbers between 1 to 10. तो आपके पास में 2, 4, 6, 8, 10 आपके पास में आएगा. ठीक है, आपको अब देखना है आपका लूप कहाँ से शुरू होना चाहिए. तो शुरू होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, 10 तक. ठीक है, तो आपके पास में क्या है या आप डायरेक्टली आप 2 से भी शुरू कर सकते हो, जैसे इस एग्जांपल में दिया है. ठीक है, बट अगर आपको 1 से शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट विद 1 ऑल्सो. हाँ, बिकॉज इट विल गेट अपडेटेड. ठीक है, तो I is equal to 2, I less than equal to 10 is the condition. अब आप ये बताइए इसमें प्रिंट क्या होगा. प्रिंट आप क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्टली I is equal to 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, you can print that I. Or in the updated statement, now I am rectifying this. If you are starting from 0 or from 2, you have this condition I less than equal to 10. Here क्या प्रिंट होगा, I is equal to 2. फर्स्ट स्टेप ये होता है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इज ट्रू, देन दिस विल गेट प्रिंटेड, मतलब 2 विल गेट प्रिंटेड. इस अपडेशन स्टेटमेंट में मेरे को कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा. कैन आई राइट I is equal to I plus 2? क्योंकि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स को ही प्रिंट करना है, तो व्हाई नॉट टू अपडेट द स्टेटमेंट प्लस 2, क्या ना, क्योंकि यही I प्रिंट हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू add 2 in that number. क्योंकि एक एक स्टेप में तो मुझे नहीं, जैसे पिछली बार था 1, 2, 3 वो प्रिंट हो रहा था, तो अगर मैं इसको +2 कर देती हूँ तो मतलब पहले में क्या आएगा, पहले में लिखा आएगा 2 और फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, +2 करके 4, देन +2 करके 6, देन +2 करके 8 और लास्ट में 10. और 10 के बाद में अगर +2 करोगे तो फिर वो तो 12 आएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, एंड दिस सीरीज विल गेट प्रिंटेड. ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को, अपडेशन स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज कर सकते हैं. ये नहीं कि सिर्फ प्लस प्लस ही डाल दिया. एट सम केस यू मे रिक्वायर टू मल्टीप्लाई समथिंग और डिवाइड समथिंग. ठीक है, यस, ऐसे ये आपका इसमें काम आएगा. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ. एनी क्वेश्चंस? Please raise your hand. ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने लोग बैठे हैं और कोई डाउट ना हो. बताओ, प्लीज आस्क क्वेश्चंस. यहाँ तक किसी के पास कोई डाउट है तो बोलो. यस आयुष, म्यूट योरसेल्फ. यस आयुष, बोलो. मैम क्वेश्चन में 1 से 10 के बिटवीन था, तो क्या 10 प्रिंट होगा इवन नंबर्स में? हाँ हाँ, इक्वल टू है ना, ये देखो मैंने यहाँ कंडीशन देखो क्या डाली है, 7 इक्वल टू 10 है ना. मैम क्वेश्चन में बिटवीन था, अगर एग्जाम में आए जैसे टेस्ट में आए. देन यू कैन पुट, बेटा यू कैन इरेज दिस इक्वल टू, लेस देन हो जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा.
है ना? मैम पूछना था कि हम करना क्या है मैम, 10 प्रिंट करना है कि नहीं करना है? इफ इट इज आस्क्ड कि इन बिटवीन 1 to 10 है तो 10 तो आएगा ना उसमें. If we will ask you any question, that will be very much clear. Don't think के वो clarity नहीं होगी. Question paper ऐसे नहीं डालते. बोलो लवप्रीत. Ma'am, is it possible in the first line dollar sign will print one time in second line, two time in third line, three Everything time? is possible, but I am going one by one. मैं directly अभी ऐसा नहीं, क्योंकि so many people in this class there are many students, they have not done programming. I will teach you everything. We are going step by step. अभी सिर्फ इतना ऐसे ही प्रिंट करना आ जाए, पहले लेक्चर है ना, बाद में सब ये पैटर्न्स डिजाइन सब प्रिंट करेंगे हम. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको समझाया है, यू हैव टू यू जस्ट रिवाइज इट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज स्मॉल प्रोग्राम्स. आई थिंक 2-3 programs are there. Fine. Any other question is there? Then I'll end the class there. ठीक है, thank you.